Good afternoon, students. Today we'll be starting with a new chapter, which is life in water. पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हमने वाटर के बारे में पढ़ा था, राइट? We studied about water bodies and the various properties of water. Now in this chapter we are going to see life in water. मतलब water में जिंदगी कैसे रहती है, in which basically we will pay more attention to the plants and animals, the aquatic plants and animals which live in water, which live and survive in water. So I will request you all to turn to page 99. वाटर बीइंग अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये सब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, राइट? कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, is able to dissolve a large amount of substances that are essential for life. Water को universal solvent क्यों कहते हैं? Because it is able to dissolve a large amount of substances. जैसे हमने पिछली क्लास में भी देखा था एक एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने शुगर सॉल्ट को मिक्स किया था, right? So it is able to dissolve a large number of substances, and these substances are called what? These are called solute. We have studied this in the last chapter. The nutrients that plant absorb from the soil are actually soluble in water. अब ये सेंटेंस ये कहता है कि the nutrients, plants को nutrients चाहिए होते हैं, right, to grow and survive. And वो कहाँ से observe करते हैं? They observe it from the soil. From the soil are actually soluble in water. So one of the nutrients which I can give the example of is salt, right? तो जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स ऑब्जर्व करती है फ्रॉम द सॉइल, इट इज़ ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, मतलब वो भी वाटर में डिजॉल्व हो जाती है. We all know that 5 things that plant need is light. They need light, they need water. Water is the main element through which they can grow. They need space to grow. उनको space चाहिए होती है to grow. They need air, they need nutrients. अब ये जो nutrients है उसके बारे में बोला गया आपके टेक्स्ट बुक्स में कि the nutrients that plant absorb from the soil are actually soluble in water. Now the nutrients जिसका हमें बात की गई है, you will study in deep in the higher classes कि ऐसे कौन कौन सी nutrients है which are soluble in water and are also used by plants. We have read that gases such as oxygen and carbon dioxide also dissolve in water. ये हम सब ने पढ़ा है कि gases like oxygen and carbon dioxide also dissolve in water, right? And these are required in the process of what? These are required in the process of photosynthesis by the plants. Okay. These gases are essential for the survival of aquatic plants and animals. अब यहाँ पे बोला गया है जैसे कि चैप्टर का नाम है लाइफ इन वाटर. अब ये जो gases है which we talked about, that are oxygen and carbon dioxide, these are essential for survival of aquatic plants and animals as well. मतलब कि aquatic plants and animals को भी उतनी ही ज़रूरत होती है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की. Fish and other marine animals breathe in oxygen present in water through their gills. ये हम सबको पता है. We all have read this in the previous classes कि fish and other marine animals कैसे breathe करते हैं? They breathe through their gills, right? जैसे हमारे में lungs होते हैं, उनके में gills होते हैं. So they breathe in oxygen present in water. मतलब water में भी oxygen present होता है through which they survive with the help of their gills. यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी शो की है. These are the gills in the fish. Aquatic plants use the CO2, that is carbon dioxide, and oxygen, that is O2, dissolved in water for the processes of photosynthesis and respiration. अब हम सब ने देखा था कि plants need CO2 and oxygen especially for photosynthesis. Now
aquatic plants also use the CO2, that is carbon dioxide, and oxygen that is dissolved in water. Always remember, aquatic plants वो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज करती है जो पानी में डिजॉल्व होता है, मतलब पानी में प्रेजेंट होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. मतलब एक्वेटिक प्लांट्स ऑल्सो survive and grow through the process of photosynthesis, and they also use it for respiration. Respiration is what? The normal act of breathing. So you have to remember these two terms, photosynthesis and respiration. Plant life in water, this is the next topic. Plants that are submerged in water lack strong water transport system in their stems. हम सबको पता है ये प्लांट की एक स्टेम होती है. तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो प्लांट्स वाटर के अंडर सबमर्ज होते हैं, मतलब जो वाटर के अंदर रहते हैं, उनमें ये कमी होती है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की. मतलब उनकी स्टेम्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि दे कैन टेक इन वाटर, राइट. The leaves of such plants absorb water. अब यहाँ पे स्टेम की जगह किसका रोल आ जाता है? फिर जो पानी में प्लांट्स होते हैं उनका लीव्स के थ्रू वाटर ऑब्जर्व करते हैं वो न्यूट्रिएंट्स एंड डिजॉल्व्ड गैसेस डायरेक्टली फ्रॉम वाटर. The leaves of such plants observe water, nutrients and dissolved gases. Remember these three terms: water, nutrients and dissolved gases directly from water. नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि स्टेम ही ये चीज़ें प्रोवाइड करता है एक प्लांट को, पर यहाँ पे हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया? हमने ये किया है प्लांट लाइफ इन वाटर. तो यहाँ पे हम बेसिकली एक्वेटिक प्लांट्स का हमें बात करेंगे इन फोकस. सो यहाँ पे बोला गया है कि एक्वेटिक प्लांट्स की जो लीव्स होती है ना, वो ये फंक्शन परफॉर्म करती है टू प्रोवाइड द प्लांट्स विद वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड डिजॉल्व्ड गैसेस. इन मोस्ट फ्लोटिंग प्लांट्स क्या होता है? प्लांट्स विच आर on the water, which float on water. Stomata are present on the upper surface of the leaf. We all know what is a stomata. It is the small openings on a plant leaf. मतलब जो प्लांट की लीव होती है इसमें स्मॉल ओपनिंग्स होती है जो ऑक्सीजन एंड CO2 को इन एंड आउट जो प्रोसेस होता है वो परफॉर्म करती है. सो व्हाट आर दीज आर स्मॉल ओपनिंग्स. तो इन मोस्ट फ्लोटिंग प्लांट्स, अब यहाँ पे बताया गया है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं ऑन वाटर, स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ. मतलब अपर सरफेस जो होता है, जो पानी के ऊपर होता है, उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है. ऑल्सो द अपर सरफेस इज वैक्सी टू रिपेल वाटर. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जो उनका अपर सरफेस होता है ना लीफ का, वो बहुत ही वैक्सी होता है टू रिपेल वाटर. Some water plants, such as lotus, have leaves floating on the surface to capture sunlight. अब यहाँ पे बोला गया है कि लोटस इज अ वाटर प्लांट, राइट. सो दे हैव लीव्स फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि वो पानी के ऊपर ही उनकी लीव्स फ्लोट करती है, पानी के अंदर नहीं होती है, पानी के ऊपर होती है. एंड दे हेल्प इन व्हाट? दे हेल्प टू कैप्चर सनलाइट दैट इज नीडेड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एज वी ऑल नो. Underwater plants have leaves and stems that are flexible enough to move along water. मतलब जो अंडर प्लांट्स होती है उनकी जो लीव्स एंड स्टेम्स होती है ना, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, सो दैट it can, the leaves and the stems allow the plants to move along the water. मतलब पानी के साथ वो फ्लोट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही जगह में वो टिके रहे. सो जनरली इन एक्वेटिक प्लांट्स द रूट्स आर एब्सेंट और मिनिमल. ये हम सब ने अभी देखा कि रूट्स या तो बहुत ही कम होती है या तो एब्सेंट होती है, मतलब वो होती ही नहीं है. दे मेनली प्रोवाइड दी प्लांट्स विद एंकरेज. मतलब रूट्स के यहाँ पे क्या फंक्शन है कि वो प्लांट्स को एक ग्रिप देते हैं टू होल्ड, टू सर्वाइव इन दैट स्पेसिफिक spot rather than being involved in the absorption of minerals or water, unlike roots of other plants. मतलब roots की आप सबको फंक्शन पता है कि क्या होता है? It helps in absorbing the minerals of water. So now in the case of aquatic plants,
यहाँ पे रूट्स बेसिकली एक एंकरेज प्रोवाइड करते हैं, विच इज दे प्रोवाइड अ ग्रिप टू दी प्लांट टू बी इन दैट स्पेसिफिक स्पॉट ऑन दी वाटर. अब आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स के एग्जाम्पल्स शेयर किए गए, विच आर बेसिकली वाटर लिली, वाटर hyacinth and duckweed. So we will study in detail about these three plants now. Water hyacinth and duckweed grow in stagnant water, that is water which is still. मतलब कि ये जो दो एक्वेटिक आपको प्लांट्स ना बेसिकली स्टैगनेंट वाटर में दिखेंगे. वाटर विच इज स्टिल, मतलब स्टैगनेंट वाटर क्या होता है, वाटर विच इज स्टिल. एंड ये स्टैगनेंट वाटर ना बेसिकली आपको फ्लड्स के बाद ज़्यादा दिखाई देगा. एंड दीज आर stagnant water is harmful for human health. It contains a lot of bacteria. You can't use this stagnant water. So always remember, water hyacinth and duckweed तो stagnant water में ही grow करते हैं, and they are visible around that time. Weeds and white plants like duckweed which grow in water, हम सबने देखा भी पीछे duckweed कहाँ grow करते हैं, stagnant water, can choke the water bodies. We all know what are water bodies, the ponds, the rivers, the lakes, right? And make it difficult for other animals to survive in water. अब क्या है, ये जो वाइल्ड प्लांट कहते हैं इसको, डकवीट को ना, एंड वीड्स जो होते हैं, एज यू कैन सी दिस पिक्चर, मैंने वीड की भी एक पिक्चर यहाँ पे पेस्ट किए है. ये ना पानी को चोक कर देती है जो वाटर बॉडीज़ में होते हैं. वाटर बॉडीज़ आर लेक्स, ओशंस, हमारे पॉन्ड्स हो गए. हम सब ने ये चीज़ लास्ट चैप्टर में पढ़ा है. एंड हम सबको ये चीज़ पता है कि पानी में प्लांट्स तो होते ही है, पर उनके साथ साथ एनिमल्स भी होते हैं. सो दीज aquatic plants make it very difficult for the other animals to survive in water. Water lilies grow in still or slowly moving water that is rich in oxygen and nutrients. Always remember कि water lilies आपको वहीं पर दिखेंगे जहाँ पे पानी या तो still है या तो बहुत ही slowly move करता है, and that water is rich in oxygen, ठीक है, and nutrients. अब यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया है वाटर लेटिस. एक और एक्वेटिक प्लांट के बारे में मेंशन किया गया इस टॉपिक में, इज अ फ्री फ्लोटिंग प्लांट. मतलब कि ये फ्रीली पानी में फ्लोट करता है विथ स्पॉन्जी लीव्स, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर की इसकी लीव्स क्या है, स्पॉन्जी टाइप है. इट कैन फॉर्म थिक फ्लोटिंग मैट्स. अब ये लीव्स ना फ्लोटिंग मैट्स की तरह बन जाते हैं, कवरिंग द पॉन्ड सरफेस. मतलब यू कैन बेसिकली फाइंड देम इन द पॉन्ड्स. तो ये जो फ्लोटिंग मैट्स बन जाते हैं, इट कवर्स द होल ऑफ द पॉन्ड. मतलब पॉन्ड का जो ऊपर का एरिया है वो वाटर लेटिस पूरा कवर कर लेता है. As a result, it may cause oxygen scarcity that can kill marine animals. हम सब ने अभी पीछे क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि वाटर में प्लांट्स तो होते हैं पर उनके साथ साथ एनिमल्स भी होते हैं, राइट, एक्वेटिक एनिमल्स. तो अब यहाँ पे वाटर लेटिस का क्या बताया गया है, ये पॉइंट बताया गया है. एक डिसएडवांटेज है कि जब इसके जो जब ये फ्लोटिंग मैट्स बना लेते हैं ना अपनी लीव्स को, इट कॉजेज ऑक्सीजन स्कैसिटी. हम सबको ऑक्सीजन चाहिए फॉर सर्वाइवल, राइट. तो अब जब ये फ्लोटिंग मैट्स बन जाता है तो मरीन एनिमल्स का ऑक्सीजन लेवल ही इतना कम हो जाता है कि दे कांट सर्वाइव इनसाइड देन. ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ वाटर लेटिस.